Ignited Minds Tutorials, a renowned educational platform, has recently released a series of informative videos tailored for CBSE Class X students on the topic of matter and our surroundings. These videos aim to enhance students' understanding of the scientific concepts related to matter and its properties, covering essential aspects such as states of matter, physical and chemical changes, and the behavior of particles. The videos provide a comprehensive explanation of the subject matter. The engaging visual content and simplified explanations make it easier for students to grasp complex ideas. By delving into the microscopic world of atoms and molecules, Ignited Minds Tutorials help students understand the behavior of different substances and their interconversion. These videos also shed light on the various factors affecting the states of matter, such as temperature and pressure. With matter and our surroundings being an important topic in the CBSE Class X science curriculum, Ignited Minds Tutorials is committed to equipping students with the knowledge and skills needed for academic excellence. These videos serve as a valuable resource for students to enhance their understanding, reinforce concepts, and consolidate their learning by providing comprehensive and accessible educational content. Ignited Minds Tutorials is empowering students to excel in their academic pursuits and harness the power of knowledge. With their dedication to delivering quality education, they continue to ignite young minds, guiding them towards success in the realm of science and beyond. ओके चलिए भाई साहब, हम आज स्टार्ट करते हैं 9th स्टैंडर्ड में मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, मैटर क्या होता है? नहीं रे, मैटर मतलब मारामारी होता है। मैटर हो गया बोलता है कि नहीं तू? अरे आज तो मेरे साथ उसका मैटर हो गया, तो मारामारी करना ना। ठीक, मैटर क्या होता है? सो व्हाट ही इज सेइंग इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, इज इट द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ मैटर? ठीक है, ओके चलिए भाई साहब। ओके, सो इसका मतलब क्या होता है भाई साहब? व्हाट इज मैटर? इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड occupies space. Mass and occupies space. Anything that has mass and occupies space is known as matter. Theorem people. तो अभी ये जो हर्ष चौधरी है ये सोच रहा है कि कैसे मैं अभी जल्दी यहाँ से निकलूँ, फुटबॉल खेलने जाऊँगा, भाई साहब इसको मारूंगा, उसको पटकूंगा, ये सब सोच रहा है। Is this matter? What he is thinking, is this matter? क्या ये मैटर है? तो उसका थॉट है, वो मैटर नहीं है। समझ में आ रहा है? तो मैटर होने के लिए, ठीक है, एक अभी जैसे उसने फुटबॉल हाथ में उठाया, तो ये जो फुटबॉल है, इज दिस मैटर? यस, ठीक है, इट हैज गॉट बोथ मास एंड स्पेस, सो इट इज मैटर। एनीथिंग विच डज नॉट हैव मास एंड स्पेस, जैसे हमारे थॉट्स हैं, इनका मास और स्पेस नहीं है, सो ये मैटर नहीं है। ठीक है, तो मैटर मतलब क्या होता है? एनीथिंग विच हैज मास, जिसका मास हो और जिसका भाई साहब एक स्पेस हो। क्या एक चींटी मैटर है? क्या एक बहुत ही छोटा, मतलब समझ लो छोटे से छोटा टुकड़ा, एक बैक्टीरिया जिसको आप नेकेड आई से देख भी नहीं सकते हैं, आप उसको माइक्रोस्कोप लगाकर देख रहे हैं, तो क्या वो मैटर है? यस। जब तक उसमें छोटा सा भी स्पेस होगा और जब तक उसका थोड़ा सा भी मास होगा, वो मैटर होगा, इट विल बी अ मैटर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो इसी की अपन स्टडी करने वाले हैं, मैटर एंड इट्स सराउंडिंग्स में। ऑल राइट पीपल, हम चलिए मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। So let's look at this. Observe your classroom carefully, ठीक है, and make a list of things that you find. क्या क्या दिख रहे हैं भाई साहब? बेंच दिख रहा है, बैग दिख रहा है, ठीक है, एक ऐसा टीचर दिख रहा है, दिख रही है यहाँ पे और दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, और बोर्ड दिख रहा है भाई साहब, आपको चौक दिख रहा है एंड ग्लास दिख रहा है, ये सारे आपको चीजें दिख रही हैं। और ऑल दिस मैटर, और ऑल दिस मैटर, ठीक है, ऑल ऑफ दिस इज मैटर बेसिकली। डू ऑल दीज थिंग्स हैव मास? यस दे हैव, ऑल ऑफ देम हैव मास। ओके, डू दे ऑक्यूपाई स्पेस? Yes, all of them occupy space. Okay, apart from all these things, something else is also present in the classroom which you cannot see, जो आप नहीं देख सकते हैं। वो क्या होगा? एयर। बहुत बढ़िया। तो क्या एयर मैटर नहीं है? एयर तो दिख नहीं रहा ना, लेकिन तो उसको मैटर कैसे बोल रहे हो? तो इट टेक स्पेस, है ना। एयर इतना बड़ा, इसमें इस रूम में एयर है, क्या ये स्पेस में एयर है? ठीक है, सो व्हाट एवर ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, तो मास तो है उसका, ठीक है, मास तो है। सो अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, समथिंग
that something else is also present in the classroom which you cannot see, and that is air, and that also has mass. ठीक है, okay. Whatever present around us is called matter. जो भी हमारे आजू बाजू प्रेजेंट होता है उसको अपन क्या बोलेंगे? That is known as matter. ठीक है, let us see few more examples of matter. Is this matter? Occupies food, जैसे आपका मैटर हो गया भाई साहब, ये आपका भाई साहब रेत है. Is this matter? Yes it is. गुलाब के फूल भाई साहब, ठीक है, ओके. पानी, देन क्लाउड, ठीक है, देन स्टार्स, ठीक है, देन वी हैव डॉग्स. ऑल ऑफ दिस इज बेसिकली मैटर. ठीक है, तो क्लासिफिकेशन. नाउ व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. ऐसा कोई भी चीज जिसका मास भी होता है और जिसका स्पेस भी होता है उसको अपन मैटर बोलते हैं. थोड़ा कभी कभी नोट कर लिया करो, सारी चीजें नोट करने लायक नहीं है, लेकिन some things are there which should be noted. So please keep your notebooks on, people. ओके, सो एनीथिंग दैट हैज मास, ऐसा कोई भी चीज जिसमें मास होता है और जिसमें स्पेस होता है इज नोन एज मैटर, विच यू कैन परसीव थ्रू योर सेंसेस. जो आप अपने सेंसेस से परसीव कर पाओ उसको आप मैटर बोलोगे. ठीक है, लेट अस प्रूव दैट एयर हैज मास. अभी जैसे देखो एक पिचका हुआ सा फुटबॉल है, फुटबॉल, ठीक है, तो ये आपका हर्ष चौधरी का पिचका हुआ सा एक फुटबॉल है. ठीक है, इसमें कोई एयर नहीं है. इसका मास कितना ले रहे हैं आप? 1 kg. आपने देखो इसको तराजू में तोला, इसका मास 1 kg है. अभी आपने बस अब इसमें हवा भर दिया, अब इसका आप मास लोगे तो कितना आ जाएगा? इट इज शोइंग यू 1.5 kg. सो बेसिकली व्हाट इज द मास ऑफ एयर दैट इज कंटेन इन इट? 0.5 kg. समझ में आ रहा है? 1 kg तो इसका रबर का मास हो गया, लेकिन जो एयर है उसका मास कितना हो गया? 0.5 kg. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम मास ऑफ फुटबॉल हैज इंक्रीज्ड ड्यू टू एयर. तो ये इंक्रीज हो गया है ड्यू टू एयर. हेंस एयर हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. तो एयर के पास मास भी होता है और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है. नाउ व्हाट इज मास? मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी. मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच एक्सप्रेसेस द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी. तो एक बॉडी में कितना मैटर है वो मास से एक्सप्रेस होता है. मास, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच एक्सप्रेसेस द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी. व्हाट इज वेट? वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. मतलब क्या होता है? वेट क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? इज इक्वल टू m इंटू जी. तो m हो गया आपका मास और ये हो गया आपका क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, सो व्हाट इज वेट? वेट इज बेसिकली द फोर्स विथ विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ. ठीक है, सो व्हाट इज वेट पीपल? हम वेट इज द फोर्स with which a body is attracted towards earth. ठीक है, तो वेट हो गया. अ गर्ल वेइंग हरसेल्फ ऑन अ वेइंग स्केल मशीन. ठीक है, तो ये समझो भाई साहब यहाँ पे आपने पैन वेइंग 2 kg ऑफ राइस, ये भाई साहब हो गया. ओके, अ गर्ल वेइंग हरसेल्फ ऑन अ वेइंग मशीन. ठीक है, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे भाई साहब? वेट. व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम इज बेसिकली द स्पेस ऑक्यूपाइड. ठीक है, व्हाट इज वॉल्यूम? अमाउंट ऑफ गैस एंड ऑयल प्रेजेंट इन रिस्पेक्टिव कंटेनर कैन बी गिवन बाय अनदर फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, एक और फिजिकल क्वांटिटी से हम इसको मेजर कर सकते हैं, दैट इज वॉल्यूम. द स्पेस इनसाइड द कंटेनर दैट इज ऑक्यूपाइड बाय मैटर इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम. तो एक स्पेस जो ऑक्यूपाई होता है, ठीक है, द स्पेस दैट इज ऑक्यूपाइड इनसाइड अ कंटेनर, ठीक है, space occupied inside a container is known as volume. clear? Are we clear on this one people? समझ में आ रहा है? ये चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो गैस हो, जितना भी मैटर स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको अपन क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज वॉल्यूम. आर वी क्लियर ऑन दिस वन? बहुत बढ़िया. ओके, सो इज एवरीथिंग अराउंड अस मैटर?
क्या सारी चीजें जो हमारे आजू बाजू हैं वो मैटर है? ठीक है, व्हाट वुड बी द आंसर? जैसे हीट है आपका, देखो, ठीक है, हीट, देन वी हैव लाइट, देन वी हैव साउंड, ठीक है, ये आपके भाई साहब क्या हो जाएंगे? दिस इज नॉट मैटर, ठीक है, इसका कोई स्पेस नहीं है, ठीक है। हीट हो गया, देखो, हीट का कोई स्पेस नहीं, जैसे आग जल रही है, ठीक है, इसका एक हीट निकल रहा है, ठीक है, एक आप फील कर पा रहे हो उस हीट को, बट इट इज नॉट मैटर, ठीक है, इट इज नॉट मैटर। जैसे आपका लाइट हो गया, साउंड हो गया, मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या ये मैटर है? आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? नहीं दे रही है, ओके। तो आपका जो आवाज सुनाई दे रही है, क्या इसको आप वे कर सकते हैं? कैन यू वे दिस? क्या आप मेरे साउंड को वे कर सकते हैं? इज इट हैविंग एनी मास? इज इट हैविंग एनी स्पेस? नो। सो दिस इज बेसिकली ऑल्सो नॉट मैटर, ठीक है, समझ में आ रहा है? हीट हो गया, लाइट हो गया, या बेसिकली आपका साउंड हो गया, दिस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज मैटर। ऑल दीज आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो हीट भी आपका जैसे एनर्जी का फॉर्मेट हो गया, लाइट भी आपका क्या हो गया? एनर्जी का फॉर्मेट हो गया, साउंड भी आपका क्या हो गया? एनर्जी का फॉर्मेट हो गया। ऑल दीज आर बेसिकली फॉर्मेट्स ऑफ एनर्जी। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। द पार्टिकल्स विच मेक अप मैटर आर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। सो मैटर जो है बहुत टाइनी पार्टिकल्स से बनता है। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। द पार्टिकल्स विच मेक अप मैटर आर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। और ये जो मैटर बनाता है इसको अपन एटम्स या मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। टाइनी पार्टिकल्स, दीज आर एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। टेक 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर इन अ बीकर। आपने 100 मिलीलीटर पानी लिया, वाटर इन अ बीकर, डिसॉल्व अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट। पोटेशियम परमैग्नेट क्या होता है भाई साहब? KMnO4 होता है, ठीक है। दिस इज नोन एज पोटेशियम परमैग्नेट। दिस इज बेसिकली पोटेशियम परमैग्नेट। आपने कुछ क्रिस्टल्स आपने डिसॉल्व किए, you have dissolved a few crystals of potassium permanganate into it. What will happen? A deep purple color solution is obtained. आपको ऐसा पर्पल कलर का सोल्यूशन दिखेगा। वाटर में आपने पोटेशियम परमैग्नेट डाल दिया तो आपको एक डीप पर्पल कलर सोल्यूशन दिखा, ठीक है। टेक 100 मिलीलीटर ऑफ दिस सोल्यूशन। आपने भाई साहब 100 मिलीलीटर सोल्यूशन लिया फ्रॉम एंड मिक्स इट विद 90 मिलीलीटर ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सेकंड बीकर। तो आपने 100 मिलीलीटर लिया भाई साहब और इसको आपने डाल दिया इसमें, ठीक है, और इसको पानी इसमें गिराया, ये पोटेशियम परमैंगनेट को इसमें मिक्स किया, ठीक है। आपको इसमें भी पर्पल कलर मिलेगा। अभी आपने फिर इसमें से लिया, ठीक है, इसमें से उठाया और इसमें डाला, तो आप क्या देखोगे कि ये जो कलर है ये धीरे धीरे फीका पड़ता जा रहा है। समझ में आ रही है? आपने पहले इसको डिसॉल्व किया वाटर में, अभी इसमें से सैंपल उठा के अलग से वाटर में डिसॉल्व किया, फिर इसमें, तो आप देखोगे कलर जो है वो फीका पड़ता जाएगा, ठीक है। दिस कलर इज गोइंग टू बेसिकली पोटेशियम परमैंगनेट। वही है जिसको आप भाई साहब होली में रंग पोतते हो ना, वही है जी, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट। ओके, तो देखोगे आप अगर धीरे 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 आपका ये रंग क्या होता जाएगा? फीका पड़ता जाएगा, ठीक है। इट इज गोइंग टू बेसिकली लेस डीप इन कलर, ठीक है। द कलर ऑफ द सोल्यूशन बिकम स्टिल लाइटर। व्हाई? ऐसा क्यों हुआ रहेगा? व्हाई वुड दिस हैपन? देखो यहां पे पोटेशियम परमैंगनेट ज्यादा है कि नहीं, और एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ वाटर यहां पे पोटेशियम परमैंगनेट जो है तो वो कम हो गया है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। यहां पे और कम हो गया है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, यहां पे तो बहुत ही कम हो गया है, ठीक है। सो जैसे जैसे पोटेशियम परमैंगनेट के मॉलिक्यूल्स वाटर में कम होते जाएंगे, सोल्यूशन का रंग फीका पड़ता जाएगा। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। So 2 or 3 tiny crystals of potassium permanganate can impart color to a large volume of water. 2-3 क्रिस्टल्स ही आपके काफी हैं एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर को कलर इंपार्ट करने के लिए। दिस इज बिकॉज ईच पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स विच कीप ऑन स्प्रेडिंग एंड इंपार्टिंग कलर ऑन डाइल्यूशन। तो हर एक पोटेशियम परमैंगनेट का जो क्रिस्टल है वो भाई साहब मिलियंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है। हर एक पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल में मिलियंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स हैं जो भाई साहब रेगुलरली वाटर में डिसॉल्व होते रहते हैं और उनको कलर इंपार्ट करते रहते हैं, ठीक है। क्लियर है? ओके। दिस इंडिकेट्स द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितने स्मॉल होते हैं, हाउ स्मॉल दे आर, ठीक है। सो जितना भी आप करते जाओगे देखो डिसॉल्व होता जाएगा और वाटर में कलर पकड़ता जाएगा, ठीक है। Any questions so far, people? Any questions on this one? Okay, okay, okay. The particles of matter have spaces between them. जितने भी particles of matter होते हैं उनमें वैसे स्पेसेस होते हैं। जैसे आपने यहाँ पे क्या लिया हुआ है?
100 मिलीलीटर का पानी लिया हुआ है, ठीक है। अभी इस पानी में भाई साहब, ठीक है, आपने क्या डाल दिया, शक्कर डाल दिया, ठीक है। नाउ मार्क द लेवल ऑफ वाटर, ठीक है, ऐड 50 ग्राम ऑफ शुगर। आपने भाई साहब यहाँ पे लेवल मार्क कर लिया, ठीक है। बीकर में पानी लिया, इसको आते ही नींद आना चालू रहता है। बीकर में पानी लिया और इसको आपने मार्क किया। अभी आपने क्या किया, 50 ग्राम शुगर इसमें ऐड कर दिया। तो आपको क्या लगता है ये लेवल बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, इट इज गोइंग टू रिमेन द सेम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, शुगर के पार्टिकल्स कहां गए भाई? शुगर के पार्टिकल्स वो जो वाटर के एम्प्टी स्पेसेस में उनमें एडजस्ट हो गए, ठीक है। वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसे हैं, देखो थोड़ा थोड़ा उनमें स्पेस है, ठीक है, ऐसा थोड़ा थोड़ा उनमें भाई साहब स्पेस है। तो शुगर के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, शुगर के मॉलिक्यूल्स इन स्पेसेस में एडजस्ट होने लगेंगे, ठीक है, इन स्पेसेस में एडजस्ट होंगे। और इसीलिए आपको देखो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है। वॉल्यूम इज नॉट इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इज रिमेनिंग द सेम, ओके। डिसॉल्व द शुगर बाय स्टरिंग इट, आपने भाई साहब स्टर किया और शुगर को डिसॉल्व किया, ठीक है। सो आपने स्टर करके इस शुगर को डिसॉल्व कर दिया, ओके। यू विल नोटिस दैट द लेवल ऑफ वाटर इज द सेम इवन आफ्टर द शुगर हैज बीन डिसॉल्व। तो लेवल ऑफ वाटर जो है वो सेम रहेगा शुगर के डिसॉल्व होने के बाद। सो वेयर डज द शुगर गो, ये शुगर बेसिकली जाता कहाँ है, ठीक है। शुगर पार्टिकल्स गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। तो आपका भाई साहब शुगर पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, दे गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन वाटर। तो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में आ जाता है, ठीक है। शुगर पार्टिकल्स गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो आपके वाटर पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस हैं, ये वाटर पार्टिकल्स हैं, और इनके बीच में जो स्पेसेस हैं उनके बीच में आपका शुगर पार्टिकल्स एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। शुगर पार्टिकल्स गेट एडजस्टेड। क्लियर है? आर वी गेटिंग क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझम ओके। दिस इंडिकेट्स दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। तो जितने भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर होंगे उनके बीच में भाई साहब स्पेसेस होंगे, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जितने भी पार्टिकल्स होंगे मैटर के वो आपको कंटिन्यूअस मोशन में दिखेंगे, ठीक है। दे विल बी इन कंटिन्यूअस मोशन। तो जैसे देखो यहाँ पे आपने वाटर में पोटेशियम परमैंगनेट को जब डिसॉल्व किया तो आपको ऐसे ही दिखेगा, ये धीरे धीरे पूरा वाटर जो है पर्पल कलर का हो जाएगा, ठीक है। सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। सो पोटेशियम परमैंगनेट पार्टिकल्स स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर पार्टिकल्स एंड मिक्स अप on their own without stirring because they are moving and they are in motion। यहां पे आपको स्टरिंग की जरूरत नहीं पड़ी, ये अपने आप ही भाई साहब मिक्स हो गया, ठीक है। दे स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर वॉल्यूम, ओके। दिस मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स अमंग ईच अदर ऑन देयर ओन सो दैट दे बिकम मिक्स यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। तो धीरे धीरे अपने आप ही, आपने यहाँ पे स्टरिंग भी नहीं किया, वो अपने आप ही भाई साहब डिसॉल्व हो गया। ये पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल्स हैं ये अपने आप वाटर में डिसॉल्व हो गए। ये जो प्रोसेस है इसको अपन क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके। दिस इंडिकेट्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ये क्यों हुआ रहेगा, क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ये मूव नहीं करता था तो एक ही जगह रह जाता था, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम जस्ट वन मोमेंट, ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। ओके, सो दिस इंडिकेट्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो ये जो पोटेशियम परमैंगनेट को हमने भाई साहब वाटर में डिसॉल्व किया, ये भाई साहब पूरा पर्पल कलर वाटर हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके मॉलिक्यूल्स फटाफट से कहां फैल गए, वाटर में पूरा पूरा फैल गए, ठीक है। सो इट मींस दैट द वाटर इज बेसिकली डिसॉल्विंग दिस, ठीक है। ओके ओके ओके। नाउ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। व्हाई आर वी नॉट एबल टू स्मेल एन अनलिट इंसेंस स्टिक फ्रॉम डिस्टेंस? समझ लो भाई साहब, कोई अगर ये भाई साहब एक आपका क्या बोलते हैं इसको, कछुआ छाप जो भी है, ठीक है, ये एक अगरबत्ती है कि नहीं, क्या आप इसको स्मेल कर पा रहे हैं? नहीं। द मोमेंट आई लाइट इट यू आर एबल टू स्मेल इट, ठीक है। सो व्हाट हैज हैपेंड, द मोमेंट आई लाइट इट यू आर एबल टू स्मेल इट। व्हाई आर वी नॉट एबल टू स्मेल एन अनलिट इंसेंस स्टिक फ्रॉम अ डिस्टेंस? बिकॉज it is not moving, ठीक है, because it is not moving. When we light or burn an incense stick in one corner of a room, its fragrance spread in the whole room quickly। तो जैसे ही हमने भाई साहब किसी अगरबत्ती को जलाया, इसका फ्रेग्रेंस पूरे रूम में फैल जाता है। The fragrance spreads in the entire room very quickly, ठीक है, the moment we light it। The particles of gases produced move rapidly in all directions, mixed with the moving particles of air in the room। तो रैपिडली सारे डायरेक्शन में फैल जाते हैं, ठीक है, इन ऑल डायरेक्शंस, मिक्स विद द मूविंग पार्टिकल्स ऑफ एयर इन द रूम। और ये मिक्स हो जाते हैं पूरे मूविंग पार्टिकल्स ऑफ एयर इन द रूम, ठीक है।
समझ में आ रहा है? तो यहां से जैसे गैस तो पूरे रूम में भाई साहब फैल जाता है, ठीक है, ओके। व्हेन लिट देयर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, जैसे आप इसको जलाते हैं इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, व्हेन लिट देयर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस द फ्रेग्रेंट मॉलिक्यूल्स कम इन द वेपर फेज, तो ये किस में आ जाते हैं, वेपर फेज में आ जाते हैं, ठीक है। एंड आर डिफ्यूज्ड इन द सराउंडिंग्स, और पूरे सराउंडिंग्स में आपके फैल जाते हैं, दे आर बेसिकली डिफ्यूज्ड इन द सराउंडिंग्स। आर वी क्लियर फॉर दिस वन पीपल, ठीक है, ओके। Now, what is kinetic energy? What is kinetic energy? The kinetic energy of an object is the energy which it possesses due to its motion. तो kinetic energy क्या होती है बॉडी की, ठीक है। What is kinetic energy? लिखते रहिए भाई साहब, लिखते रहिए, ठीक है। What is kinetic energy? Kinetic energy of an object is the energy which it possesses due to its motion. जब कोई बॉडी मोशन में होता है तो उसके पास जो एनर्जी होती है उसको अपन बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। द एनर्जी विच इज बेसिकली पोजेस्ड बाय अ बॉडी व्हाइल इट इज मूविंग इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आता हूं? क्या इस बॉडी में काइनेटिक एनर्जी है? देखो ये, क्या इसमें काइनेटिक एनर्जी है? नहीं, ये रेस्ट पे। क्या इसमें काइनेटिक एनर्जी है? नहीं। जैसे हम इसको मूव करेंगे तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। सो द एनर्जी विच इज बेसिकली पोजेस्ड बाय अ बॉडी व्हेन इट स्टार्ट्स टू मूव इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ओके। ब्राउनियन मोशन, अब ये ब्राउनियन मोशन क्या होता है? देखो, द बेस्ट एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस एंड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड्स कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय ब्राउनियन मोशन। ये आपका बेस्ट एविडेंस है, ठीक है। अभी हम समझेंगे कि ब्राउनियन मोशन बेसिकली होता क्या है। आपने पॉलन ग्रेन्स का नाम सुना है? पॉलन ग्रेन्स क्या होता है? झाड़ में होता है, ठीक है, ओके। सो देखो, अगर समझ लो कोई फूल है ये, ठीक है, लेट्स से कोई फ्लावर है, ठीक है, लेट्स से दिस इज बेसिकली अ फ्लावर, ठीक है, और इस फ्लावर में ऐसे मेल उसमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं, दीज आर बेसिकली पॉलन ग्रेन्स। जैसे ही इस पॉलन ग्रेन्स को आप किस में डालेंगे, पानी में, आपको ये पॉलन ग्रेन्स साफ जुब ऐसे जाते हुए दिखाई देंगे। दे आर गोइंग टू मूव कंटिन्यूअसली, फटफट ऐसे मूव होते दिखाई देंगे। तो ये जो कंटिन्यूअस मूवमेंट है इसको अपन बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ दीज पॉलन ग्रेन्स इज नोन एज, आपको दिखेगा ये, जैसे आपने डाला सब ऐसे मूव करेंगे, ठीक है, अपने आप ही मूव करने लगेंगे, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज ब्राउनियन मोशन। दिस वाज एक्चुअली ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। सो रॉबर्ट ब्राउन who was born in 1827, ठीक है, he suspended extremely small pollen grains, बहुत छोटे छोटे pollen grains को इन्होंने जब वाटर में डाला, ये pollen grains है, तो ये भाई साहब ऐसे ब्राउनियन मोशन जाप ऐसे मूव करने लगे, ठीक है। दे स्टार्टेड मूविंग, देखो इसको नींद आ रही है बहुत जोर से, ठीक है। दे स्टार्टेड मूविंग वेरी रैपिडली, ठीक है, तो आपके रैपिड मूवमेंट्स होने लगे। दे स्टार्टेड मूविंग वेरी रैपिडली, रैपिड मूवमेंट्स होने लगे। These small pollen grains, they started moving very rapidly, ठीक है। Under microscope, he found that the pollen grains were moving rapidly throughout the water in a zigzag way. तो zigzag way में भाई साहब ये मूव कर रहे थे। They are basically moving in a very zigzag way, ठीक है। तो इस तरह से zigzag way. The pollen grains move to the surface of the water because they are constantly being hit by the fast moving particles of water. तो water तो हो क्या रहा है, देखो pollen grains को जैसे अभी पॉलन ग्रेन को डाला लेकिन वाटर पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, वो आपको नहीं दिख रहे, तो ये फाट फूट मार रहे हैं, ठीक है। वाटर पार्टिकल्स आर मूविंग वेरी फास्ट। द मोमेंट यू सस्पेंड द पॉलन ग्रेन्स इन इट, दे विल हिट द पॉलन ग्रेन्स एंड द पॉलन ग्रेन्स विल स्टार्ट टू मूव। द पॉलन ग्रेन्स मूव ऑन द surface of water because they are constantly being hit by the fast moving particles of water. So the pollen grains move on the surface of water because they are constantly being hit by the fast moving particles of water, ठीक है। ओके, सो इसी तरह से देखो, व्हेन अ बीम ऑफ सनलाइट एंटर्स अ रूम, जब सनलाइट एंटर करता है रूम में, वी कैन ऑब्जर्व टाइनी डस्ट पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन एयर व्हिच आर मूविंग रैपिडली इन अ वेरी हैपेजर्ड वे। ठीक, आप यहाँ पे देखेंगे टाइनी डस्ट पार्टिकल्स आर देयर व्हिच आर, आपने देखा रहेगा सनलाइट आ रहा है और इसमें टाइनी डस्ट पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। व्हेन अ बीम ऑफ सनलाइट एंटर्स अ रूम, वी कैन ऑब्जर्व टाइनी डस्ट पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन एयर व्हिच आर मूविंग रैपिडली इन अ वेरी हैपेजर्ड वे। फाट ऐसे भाई साहब आपको दिखाएगा, ठीक है, ओके। दे मूव एयर एंड देयर बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली हिट बाय द फास्ट मूविंग पार्टिकल्स ऑफ एयर। तो इनको कांस्टेंट हिट हो रहा है, किससे? फास्ट मूविंग पार्टिकल्स ऑफ एयर से, ठीक है। दे मूव एयर एंड देयर बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली हिट बाय फास्ट मूविंग पार्टिकल्स ऑफ एयर। फास्ट मूविंग पार्टिकल्स इनको भाई साहब क्या कर रहे हैं? हिट कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, ठीक है। दिस zigzag movement of small particles suspended in a liquid or gas is called Brownian motion. ये जो zigzag movement होता है, ठीक है,
zigzag movement of small particles, ठीक है, this zigzag movement of small particles suspended in a liquid or gas is called Brownian motion. ये जो zigzag movement हो रहा है continuously, ठीक है, which are suspended in a liquid or gas, this movement is called Brownian motion. Are we clear to this one people? हम समझ में आता हम, ठीक है, ओके. Brownian motion increases on increasing the temperature. जितना आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ठीक है, Brownian motion increases on increasing the temperature. जैसे जैसे भाई साहब आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे, Brownian motion आपका बढ़ता जाएगा. Brownian motion keeps on increasing with increasing the temperature. Diffusion and Brownian motion are the two processes which provide the best evidence for the motion of particles in matter. ठीक है, तो एक प्रोसेस है आपका डिफ्यूजन का और दूसरा है ब्राउनियन मोशन का. तो डिफ्यूजन क्या होता है? अपने आप ही आपने पोटेशियम परमैग्नेट को पानी में डाला और वो वैसा पूरा पर्पल हो गया. मतलब क्या हो रहा है? ये पार्टिकल्स पूरे वाटर में अपने आप ही फैल रहे हैं. सो मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन अ मीडियम ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन. और जैसे ही आपने भाई साहब ब्राउनियन मोशन देखा, क्या पॉलन ग्रेन्स को जैसे ही वाटर में डाला फाट फूट मूव हो रहे हैं. क्यों? क्योंकि वाटर में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं एंड दे आर हिटिंग दीज पॉलन ग्रेन्स. ठीक है, बिकॉज ऑफ विच यू सी अ कांस्टेंट मोशन. सो डिफ्यूजन एंड ब्राउनियन मोशन आर द टू प्रोसेसेस व्हिच प्रोवाइड द बेस्ट एविडेंस फॉर द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर. ये सबसे बड़ा एविडेंस प्रोवाइड करते हैं फॉर मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर. क्लियर है? आर वी क्लियर? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. अभी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर देखो भाई साहब, यहां पे जैसे समझो अ ग्लास जार कंटेनिंग रेड ब्राउन ब्रोमीन वेपर है. ये ग्लास जार है और ब्रोमीन बेसिकली एक टाइप का गैस होता है. ठीक है, सो ब्रोमीन एक गैस है जिसको अपन क्या लिखेंगे? Br2. तो ये एक जार है जिसमें रेडिश ब्राउन गैस है. ठीक है, रेडिश ब्राउन ब्रोमीन गैस है, रेडिश ब्राउन ब्रोमीन गैस. ठीक है, दिस इज बेसिकली अ गैस जार कंटेनिंग रेड ब्राउन ब्रोमीन वेपर. ठीक है, ये आपका ब्रोमीन वेपर है और आपने खाली जार लिया है. ठीक है, इसको आपने भाई साहब इन्वर्ट अनदर जार ओवर इट, अनदर गैस जार कंटेनिंग एयर ओवर इट. तो आपने भाई साहब क्या किया? ऐसे डाल दिया इसके ऊपर. ठीक है, ओके. द रेड ब्राउन वेपर ऑफ ब्रोमीन स्प्रेड आउट इन द अपर गैस जार कंटेनिंग एयर. तो ये भाई साहब ऐसे फैल जाएगा. ठीक है, ये जो रेडिश ब्राउन वेपर है इट विल बेसिकली गो इनटू द रेड ब्राउन वेपर ऑफ ब्रोमीन स्प्रेड आउट इनटू द अपर गैस जार कंटेनिंग एयर. So they will basically spread out into the upper gas jar containing air. ठीक है, the upper gas jar which contains colorless air in it also turns reddish brown. तो upper gas jar जो होता है, जो the upper gas jar which contains colorless air in it also turns reddish brown. तो इसमें colorless air होता है जो reddish brown हो जाएगा. ठीक है, this will basically turn reddish brown. Okay. This mixture is due to the diffusion of bromine vapor into air. तो ये जो ब्रोमीन वेपर है ये डिफ्यूज हो रहा है किसमें? एयर में. ठीक है, ओके. एयर फ्रॉम द अपर गैस जार ऑल्सो डिफ्यूज इनटू द लोअर गैस जार, दो वी कैन नॉट सी. एक्चुअली में दोनों भी हो रहा है. ऊपर से एयर इधर आ रहा है और नीचे से ब्रोमीन ऊपर जा रहा है. ये कंटिन्यूअस मिक्सिंग चल रही है. हम एयर को नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि एयर कलरलेस होता है, लेकिन ब्रोमीन वेपर को हम देख पा रहे हैं विच इज रेडिश ब्राउन इन कलर. सो देयर इज अ कंटिन्यूअस मिक्सिंग दैट इज हैपनिंग. ठीक है. Diffusion. Now what is diffusion? Diffusion is based on the motion of its particles. Diffusion is fastest in gas and slowest in solids. तो diffusion बहुत फास्ट होता है गैसेस में. जैसे मैंने यहाँ पे जैसे ही अगरबत्ती जलाई आप तक स्मेल पहुंच गया. क्यों? क्योंकि अगरबत्ती के पार्टिकल्स फटाफट भाई साहब एयर में डिफ्यूज हो गए. ठीक है, ये गैसेस में सबसे ज्यादा होता है. डिफ्यूजन इन लिक्विड्स में आपने देखा कि कैसे अगर आपने एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में डिसॉल्व किया तो उस लिक्विड का कलर चेंज हो रहा है. दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन इन लिक्विड्स. और एक होता है डिफ्यूजन इन सॉलिड्स. सॉलिड्स में डिफ्यूजन बहुत डिफिकल्ट होता है. जैसे देखो यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे मैंने कुछ लिखा है चौक से. अगर आज ही लिखा होगा तो आज फटाक से आप मिटा सकते हैं, लेकिन अगर समझ लो साल भर के बाद आप मिटाने जाएंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा. ठीक है, आपने देखा रहेगा, समझ लो आपके घरों में ऐसा देखा रहेगा आपने कि लेट्स से एक लोहे का बक्सा है. अगर आपने कभी लोहे का बक्सा देखा होगा, पहले के ज़माने में लोहे के बक्से इस्तेमाल होते थे. ये लोहे का बक्सा है, उसके ऊपर आपने एक और लोहे का बॉक्स रख दिया लेट्स से. ठीक है, और ये बहुत सालों से ऐसे पड़ा हुआ है. आपने जैसे ही इसको हटाया तो आपको क्या दिखेगा? ये वाले लोहे के बॉक्स के ऊपर, ये वाले लोहे के बॉक्स के ऊपर भाई साहब क्या होगा? आपको एक भाई साहब ऐसा मिलेगा. ठीक है, अबव दिस यू विल सी दिस. ठीक है, सो जैसे ही इसको आपने हटाया तो इस तरीके का आपको दाग मिलेगा. सो ये क्या हुआ है? दिस इज अ प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन.
बहुत धीरे धीरे ये सॉलिड के पार्टिकल्स इसमें समाये हैं, ठीक है। वेरी स्लोली दीज सॉलिड पार्टिकल्स हैव एक्चुअली एंटर्ड दिस। सो डिफ्यूजन इज बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल। डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट इन गैसेस एंड स्लोवेस्ट इन सॉलिड्स। तो गैसेस में बहुत फास्ट है और सॉलिड्स में बहुत धीरे धीरे होता है, बहुत टाइम लगता है इसको, ठीक है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द डिफ्यूजिंग सब्सटेंस। तो आप जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते हैं आपका डिफ्यूजन का रेट आपका बढ़ता रहता है, ठीक है। इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। डिफ्यूजन भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर। यार ठीक है। सो व्हाट इज डिफ्यूजन? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज नोन एज डिफ्यूजन। तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स हैं, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज नोन एज डिफ्यूजन। समझ में आ रहा है ये भाई साहब? दो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स हैं, एक सॉलिड है एक लिक्विड है, या दोनों भी लिक्विड है या दोनों भी गैस है, अलग अलग पार्टिकल्स हैं, इनका मिक्सअप होना, ठीक है। इंटरमिक्सिंग तुम लोग नोट नहीं कर रहे हो कोई भी, वो दोनों ही कर रहे हैं। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, दो अलग टाइप के मैटर जो हैं उनका इंटरमिक्सिंग होना, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन, ठीक है। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे पिज्जा बन रहा है, आप तक स्मेल जा रहा है, आपके मुंह में पानी आ जाएगा भाई साहब, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो पिज्जा पार्टिकल्स के जो वेपर है वो एयर में क्या हो रहे हैं? डिफ्यूज हो रहे हैं, एंड दैट्स हाउ यू आर गेटिंग द स्मेल, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली अ काइंड ऑफ डिफ्यूजन। द स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड रीचेस अस इवन फ्रॉम कंसिडरेबल डिस्टेंस, ठीक है। बहुत दूर से भी आप फूड को स्मेल कर सकते हैं, यू कैन बेसिकली स्मेल द एंटायर फूड, ओके। द ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन एयर डिफ्यूजेस इनटू वाटर एंड डिसॉल्व्स इन इट। तो ऑक्सीजन गैस जो एयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, the oxygen gas present in air diffuses into water and dissolves in it, और इसमें ये dissolve हो जाता है। The aquatic animals can breathe under water due to the presence of dissolved oxygen। तो जितने भी aquatic animals होते हैं वो breathe कर पाते हैं due to the presence of oxygen। Are we clear on this one people? हम समझ में आता, ठीक है, ओके। स्प्रेडिंग इंक इन वाटर, जैसे आप इंक को स्प्रेड कर रहे हो भाई साहब, ठीक है, ये भी एक क्या प्रोसेस है? आपने इंक का एक पार्टिकल डाला और पूरा वाटर जो है तो नीले कलर का हो गया। सो दिस इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। द स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड्स ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ परफ्यूम वेपर इनटू इट, ठीक है। तो आप जब किसी परफ्यूम को लगाते हैं तो परफ्यूम का स्मेल जो है तो स्प्रेड आउट हो जाता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ परफ्यूम वेपर का डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। द स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड्स ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ परफ्यूम वेपर इनटू एयर। तो परफ्यूम वेपर जो है तो एयर में डिफ्यूज हो रहा है, ठीक है। डिफ्यूजन इन सॉलिड्स इज वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, ठीक है। सॉलिड्स में बहुत स्लो प्रोसेस है, क्योंकि आपको जैसे मैंने आपको बताया कि एक बक्सा है, उसके ऊपर आपने एक दूसरा बक्सा रखा, उस बक्से को हटाएंगे बहुत सालों बाद, तब जाकर आपको दिखेगा कि भाई साहब वहां पे मार्क्स आए। तो सॉलिड्स में डिफ्यूजन इज अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। आपने चप्पल देखे हैं, पुराने चप्पल, तो उसमें देखो उसमें पैर का एक छाप आ जाता है, आप देखो, ठीक है, जो भी इसको पहन रहा होगा उसके पैर का एक मार्किंग आ जाएगा। ये बहुत धीरे धीरे होगा, नए नए चप्पल में नहीं आएगा। एक दो साल अगर आपने उस चप्पल को वापरा होगा तो आपको वो दिखेगा, ठीक है। दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये, ठीक है। डिफ्यूजन इन सॉलिड इज अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जितने भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं भाई साहब? अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे आपका चॉक पीस है, ये देखो, ठीक है, ये आपका आयरन नेल है, दिस इज बेसिकली आइस क्यूब, ठीक है। टेक अ पीस ऑफ चॉक एंड आयरन नेल एंड क्यूब ऑफ आइस, हिट देम विथ हैमर। तो आप इसको हैमर से हिट करते हैं जब, ठीक है, तो विच इज इजियर टू ब्रेक? ऑब्वियसली चॉक पीस, ठीक है। आइस क्यूब को भी आप तोड़ सकते हैं लेकिन इसको तो नहीं तोड़ पाएंगे, ठीक है। तो विच रिक्वायर्स मोर फोर्स, सो इट इज इजी टू ब्रेक द पीस ऑफ चॉक इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। आप आराम से भाई साहब चॉक को स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ सकते हैं। एंड अ क्यूब ऑफ आइस रिक्वायर्स मोर फोर्स, तो क्यूब ऑफ आइस में ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है। वेयर एज द आयरन नेल डज नॉट ब्रेक इवन विद अ लार्ज फोर्स। जबकि आयरन नेल जो है तो बहुत देर तक आप इसको मारते रहोगे तो भी ये नहीं टूटेगा, इवन इफ यू आर अप्लाइंग अ ह्यूज फोर्स इन इट, ठीक है। समझ में आ रहा है ये? ओके, जस्ट वन मोमेंट पीपल।